India produces just 3% of its consumption and has to import the deficit to meet the demands of the global customers and also the domestic market. As there is a duty enforced now, or going to be enforced on cotton, it is going to be a blow to downstream industries, especially the market that India enjoys relating to cotton fabric and that to bed sheets. It is a direct blow. I would like to understand from the government what step is being taken to at least ease this problem which the industry is facing or is going to face. In the year 2013-14, if I just give a comparative to last year, while in 13-14 only 90 crores rupees worth of MSP operation was done in the country, under the Narendra Modi government, last year, if you include, we had an MSP operation of over 28,000 crores. This year, I have a figure of MSP operations of up to 26,000 crores. And in our engagement with farmers, we have ensured that issues of contamination-free picking of cotton is undertaken. In collaboration with industry, we have ensured that cotton picking machines the handheld devices are given to especially small and marginal farmers. Additionally, in collaboration with industry, we have seen many experiments being undertaken by farm and industry together where extra long staple cotton is grown, including we are ensuring that productivity per acreage or hectare of land increases, thereby benefiting both farm and industry. हमारे अमृतसर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल की, ओसीएम, प्रताप मिल, एस्मा और भी बड़े यूनिट थे, वो भी वहाँ से 84 के बाद वहाँ से शिफ्ट हो गए। और साथ के साथ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 120 यूनिट थे, अब वो कम होकर 15-16 यूनिट रह गए हैं। ऐसी इंडस्ट्री थी कि जो सूरत है चाहे बॉम्बे है, कहीं से भी जो प्रिंसिपल इंडस्ट्री मानी जाती थी वो अमृतसर में थी। लेकिन मैम अब वो सारी वहाँ से जा चुकी है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने से हमारी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, इंटरनेशनल बस टर्मिनल भी है और रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है हिमाचल तक, जम्मू कश्मीर तक। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो स्कीम आप कर रहे हैं बनाने की, इंडस्ट्री को प्रमोट करने की, काइंडली क्या अमृतसर के लिए कोई ऐसी स्कीम आप दे सकते हैं? Yes, India has a very vibrant textile potential and a vibrant textile legacy. However, one of the greatest challenges my ministry had to face was that a decade in our country's governance went in wherein over 40 to 50% of schemes that were pronounced by the textile ministry were surrendered. Hence, the industry at large for over a decade, and though the honourable member is from that political organisation, I am not here casting aspersion on his kind self, but over a decade, the industry was bereft of that financial support, and hence a large segment of the industry was hit in that decade. Additionally, Madam, we also need to recognize here that policies and industry interventions were ably and are meant to be supported by statistics and by data, but the data accumulation capacity of the Textile Commissioner's Office also ceased in that one decade of UPA governance. Not only have we now engaged through the Textile Commissioner's Office with industry partners across the country, though the honourable member speaks of Amritsar, I must here tell him that any industry, be it a big company or an MSME, comes forward with a particular proposal for support in terms of technical upgradation or for that matter subsidy support of other kinds, including building of workshed, is ably supported depending on the proposal given by that industry representative. कि एक समय था, एक ज़माना था जब भागलपुर का सिल्क पूरे दुनिया में विख्यात था और पूरे दुनिया में भागलपुर के सिल्क का निर्यात इतने बड़े पैमाने पर होता था कि वो पूरा मार्केट कब्जा किया हुआ था। आज की तारीख में पूरा सिल्क इंडस्ट्री जो है भागलपुर का, वो लगभग समाप्त हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि क्या भागलपुर के सिल्क इंडस्ट्रीज़ को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए आपको योजना पर विचार करेंगे? आज मार्केट हालात ऐसे हैं जहां पर फाइन सिल्क और फाइन सिल्क प्रोडक्शन के ऊपर देश विदेश में ज़्यादा
प्रभाव पड़ते दिखता है। इसीलिए सिल्क समग्र नाम की एक योजना शुरू की गई 2000 करोड़ की लागत से, जिसमें हिंदुस्तान को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए सिल्क की दृष्टि से इस पर काम हुआ। महोदय, गत 2 वर्षों में सिल्क बायोवोल्टीन का प्रोडक्शन 24% बढ़ा। हमारे रोज़गार उस क्षेत्र में 10 लाख और बढ़े। लेकिन साथ ही ये कहना उचित होगा कि एक तरफ जहाँ पर हम बायोवोल्टीन की प्रोडक्शन को और तवज्जो दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, बिकॉज दिस नॉट ओनली डोमेस्टिक बट इंटरनेशनल मार्केट, लेकिन हैंडक्राफ्ट और हैंड लेगेसी की दृष्टि से भागलपुर सिल्क और वहाँ के वीवर्स के साथ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम का ऑफिस और प्रदेश के जितने भी हमारी एजेंसीज़ हैं वो दोनों समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। भागलपुर में सबसे बड़ी चुनौती रही है कि जो रॉ सिल्क प्रोडक्शन नहीं बल्कि डिज़ाइन एलिमेंट जिसमें सपोर्ट चाहिए, पैकेजिंग एलिमेंट जिसमें सपोर्ट चाहिए और ई कॉमर्स की एक्टिविटीज़ में थोड़ा बहुत जहाँ पर समर्थन चाहिए, उस दृष्टि से डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम का ऑफिस वहाँ पर पर्याप्त जहाँ पर सहयोग की लोग मांग कर रहे हैं वहाँ दे रहे हैं। Trend of packaged and processing foods growing in our country, ma'am. And these packaged and processing foods lead to carbon emissions. Do we have a blueprint in place to tackle such carbon emissions? First, let me demystify the carbon emissions, because I have a data from 1751 to 2017, 270 years, which countries have emitted how much is interesting to know and understand. European continent have done these emissions, 33% of the historical emissions, that is 514 billion tons. USA has done 25% of emission, which has resulted into climate change, has done nearly 400 billion tons. Europe, with 22%, has done 353 billion tons. China has done over 13%, that is 200 billion tons. India is just 48 billion tons in this scenario, so we are absolutely not responsible. मुझे याद है 2019 में बारिश की वजह से, उसके बाद भीषण गर्मी पड़ने की वजह से फसलों पर फफूंदी लगी थी। पिछले साल जो है टिड्डी दलों का एक अटैक हुआ था। इसका प्रमुख कारण जो है जलवायु परिवर्तन है। लेकिन इस बजट में अगर आप देखेंगे जो अभी हमने पास किया है कल, उसमें भी पर्याप्त धन जो है आपके विभाग को आवंटित नहीं किया गया है। और इसका क्या कारण है? क्या सरकार जलवायु परिवर्तन को लेकर के किसी भी रूप से गंभीर नहीं है? बजट जितना पर्याप्त चाहिए उतना बढ़ाया, उतना है ही, और जितना पिछले साल का रिवाइज एस्टिमेट था जो खर्चा हुआ उससे ज़्यादा 800 करोड़ रुपए हमें बजट मिला है। ये मुद्दा बजट का नहीं है, ये मुद्दा क्योंकि बहुत सारे एजेंसियां काम करती है, उनका अपना अपना बजट होता है। मूल मुद्दा ये है कि दुनिया का ये प्रश्न है, समस्या है क्लाइमेट चेंज, और जैसे मैंने अभी बताया 250 साल के उत्सर्जन के कारण ये समस्या बनी हुई है जिसका भुक्तभोगी हम है, हम कारण नहीं है, लेकिन भारत इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। और इसलिए हम सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जोर से बात करते हैं कि जो डेवलप विकसित देश है उनको खुद कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहिए, उनको विकसनशील देशों को पैसा देना चाहिए, उनको सस्ते में टेक्नोलॉजी देना चाहिए। संकट पूरे भारत पर मंडरा रहा है। हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ हम इस प्रकार का व्यवस्था न कर पाएं कि नवजात शिशु जन्म लेते मर जाए, ये हमारे लिए और तमाम माताओं के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि इस देशव्यापी, विश्वव्यापी, देशव्यापी बृहद संकट के लिए आप अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत प्रयास हैं, फिर भी कोई बड़ी संरचना बताएं कि इस संकट से अगले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में हम लोग निवारण कर सके। ये संकट है पूरे भारतवर्ष का। दिल्ली का प्रदूषण ये सबसे गंभीर समस्या है। एक ऐप है हमारा समीर, आप डाउनलोड करिए आज, और समीर ऐप पे आपको देश भर के सभी शहरों का प्रदूषण क्या है अभी ये समझता है और फ्री है। भारत सरकार ने बहुत सारे उपाय किए हैं दिल्ली के प्रदूषण को लेकर। बदरपुर पावर प्लांट बंद कर दिया,
ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल वे जो 10 साल नहीं बना था वो बनाया, तो 50,000 ट्रक जो रोज दिल्ली को प्रदूषित करके दिल्ली से गुजरते थे वो अब नहीं आते हैं। उसके साथ साथ BS6 प्रणाली के वाहन और BS6 प्रणाली के सारा पेट्रोल डीजल उसको 60,000 करोड़ रुपए खर्च करके हमने किया है। उसके साथ साथ आज इलेक्ट्रिकल वाहन को मिला है, तो दिल्ली में अक्षरशः हजारों की तादाद में और जो 3 व्हीलर्स है, 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स भी दिखने लगे हैं, इलेक्ट्रिकल के बन रहे हैं, तो वो भी प्रदूषण कम करता है। और इसलिए दिल्ली में प्रदूषण दिल्ली के पिछले सालों की तुलना में कम हुआ है। यह अभी नया रिपोर्ट आया। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिन पर इस बार लाल किले के प्राचीर से बताया है कि आने वाले 5 साल में हम 100 शहरों में जहां प्रदूषण का समस्या है, उस प्रदूषण की स्थिति में हम अच्छा सुधार करेंगे। और उसके लिए हमने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये तैयार किया है और उसका हर सिटी वाइज प्रोफाइल अलग होता है, प्रदूषण का कारण अलग होते हैं, तो उन कारणों पर उपाय करने वाले एक हर शहर का प्लान बन गया है। उसके लिए हमने पैसा भी दिया है और सभी राज्यों के साथ और सभी शहरों के साथ काम करके हम प्रधानमंत्री के लक्ष्य को निश्चित हासिल करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय जी के आपके माध्यम से, खास करके वेस्टर्न घाट के जितने भी इलाके हैं और वेस्टर्न घाट में से जो गांव बसे हुए हैं, ऐसे कई घटना होती है, भारी बरसात जब होती है या बेमौसमी बरसात में भी भारी तरीके से होते हैं, तभी वहाँ के कई गांव में भूस्खलन की घटना काफ़ी होती है। महाराष्ट्र में भी जितनी घटना हुई है, खास करके मेरे क्षेत्र जो है वेस्टर्न घाट का, उसमें ज़्यादा हो रही है। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से उसका सर्वे किए जाते हैं, लेकिन मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो कई पिछले 3 वर्ष से जहां जहां भूस्खलन हो रहा है, वहां के गांवों को संरक्षण करने के लिए या उनके पुनर्वसन करने के लिए कोई योजना बनाई है क्या? अगर बनाई होगा तो उसका पूरा जानकारी हमें मिलना तो अच्छा होगा। मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूँ कि खाली वेस्टर्न घाट के गाँवों के संदर्भ में नहीं, ये जो विषय है ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जितने भी देश में लैंडस्लाइड्स हुए हैं या जहाँ जहाँ होने की संभावना है, पोटेंशियल है, इसके बारे में डिटेल्ड नेशनल लेवल पर लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग करता है। और ये सारा कुछ शुरू हुआ ये उत्तराखंड में जब दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी 2013 में, उसके बाद से ये हमारी सरकार ने इसको बड़े पैमाने पर इसको टेकअप किया और देश में लगभग 4.2 लाख स्क्वायर मीटर जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है, उसको पूरे देश के अंदर 1:50,000 के स्केल के ऊपर सारी जो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करके, जो आपका रिमोट सेंसिंग है, दूसरी चीज़ें हैं, इसकी डिटेल्ड मैपिंग जिसमें कि 80% से ज़्यादा की मैपिंग सारे देश में हो चुकी है। और इस सारी इन्फॉर्मेशन को लेने के साथ साथ अभी जैसे आपने सवाल में 5 वर्ष का मांगा, 5 वर्ष का दिया, लेकिन आज तक जहाँ जहाँ भी कहीं देश के अंदर लैंडस्लाइड्स वगैरह हुए, उनके अगर आज भी कोई चिन्ह, साइंटिफिक एविडेंस, कुछ भी उनके निशान बाकी हैं, उनको भी जो है सारा इस मैपिंग के दौरान उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है। और इनको बेसिकली रेगुलरली जो है ये भूकोश करके जो है एक है और वेब मैप पे इनको डाला जाता है। और इसके साथ साथ ये सारी जानकारियाँ जो है उनको कहा जाता है कि जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनसे और जो ससेप्टिबल स्टेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से, उनके साथ शेयर किया जाता है। लेकिन अगर कोई लोकलाइज्ड कहीं पर कोई इस तरह की व्यवस्था है जिसमें कि कोई किसी को डिज़ास्टर के प्रोन होने के कारण शिफ्ट करने की ज़रूरत है, टेम्परेरीली रिलोकेट करने की ज़रूरत है, तो ये वहाँ के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस इसके बारे में रणनीति बनाते हैं। लेकिन जो जियोलॉजिकल सर्वे है वो सारी की सारी जानकारियाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो सभी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस तक समय रहते उपलब्ध कराता है और आगे के बारे में जो भी आवश्यकता के अनुसार जो निर्णय होता है वो संबंधित प्रशासन लेता है। देश के
आदिवासी बहुल दुर्गम क्षेत्रों में गरीब आदिवासियों में मलेरिया, कैंसर, हृदय रोग, किडनी, लिवर तथा हेपेटाइटिस बी आदि जानलेवा रोगों के उपचार के लिए चिकित्सा सुविधा का भारी अभाव है। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में मेरा संसदीय क्षेत्र गढ़चिरोली चिमूर जो शायद देश का सबसे बड़ा घना आदिवासी बहुल नक्सल प्रभावित अविकसित क्षेत्र है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे जानलेवा रोगों के लिए उपचार के लिए नागपुर जैसे 200-250 किलोमीटर पे जाना पड़ता है। और अध्यक्ष महोदय, कई आदिवासियों में धन का अभाव रहने के कारण वो जा नहीं पाते, इसलिए मौत के शिकार हो जाते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार का इन रोगों पर पूरे देश भर में खास तौर पे जनजातीय पिछड़े क्षेत्रों में नियंत्रण लाने के लिए कोई ठोस एवं समयबद्ध कदम उठाने का विचार किया है? गवर्नमेंट का फोकस देश में सारे जितने भी देश के हिस्से हैं उसमें ऑफ कोर्स ट्राइबल एरियाज़ भी इंक्लूडेड हैं। और माननीय सदस्य जानते हैं कि शायद ये पहली सरकार है जिसने साइंटिफिक ढंग से कई महीनों तक सर्वे करने के बाद देश में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इनको जो है ढूंढा, जहाँ की बेसिक भी जो 6, 7, 8 पैरामीटर्स पर जो बेसिक सुविधाएं भी वहाँ के लोगों को आज तक उपलब्ध नहीं हुई थी। और इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है आज भी जो है भारत सरकार के ऑफिसर्स वहाँ पर नोडल ऑफिसर्स की तरह अपॉइंटेड हैं और लगातार वहाँ पर उन पैरामीटर्स के ऊपर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। ये एक एस्पेक्ट है। उसमें ऑफ कोर्स ये ट्राइबल एरियाज़ भी इंक्लूडेड होते हैं। अभी जो 75 मेडिकल कॉलेजेस जो नए एस्टैब्लिश करने की योजना बनी उसमें भी प्रेफरेंस जो है वो एस्पिरेशनल मेडिकल कॉलेजेस को दिया गया। नेशनल हेल्थ मिशन में हम लोग ग्रास रूट लेवल तक, सब सेंटर तक और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के क्रिएशन तक जो है सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को हम सपोर्ट करते हैं। और ग्रास रूट लेवल पर फैसिलिटीज़ को क्रिएट करने के लिए, फैसिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए वहाँ पर फ्री ड्रग्स, फ्री डायग्नोस्टिक्स, फ्री प्रिवेंटिव सुविधाएं ये सारी की सारी देने के लिए। और इसके लिए जहाँ कहीं भी मान लीजिए सुविधा का अभाव है या स्वास्थ्य केंद्र का अभाव है, वहाँ पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स नेशनल हेल्थ मिशन में अपने PIP के अंदर जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान होता है उसके अंदर जो भी योजना बनाकर भारत सरकार के पास भेजती है, वो भारत सरकार उस सबकी स्वीकृति देकर और उनको स्टेट गवर्नमेंट्स को उसमें पूरी सहायता करती है। और वो वहाँ पर सुविधाओं को यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन से लेकर और उसके अंदर मैन पावर क्रिएशन तक ये सारी चीज़ों को स्ट्रेंथन कर सकती है। तो मेरा माननीय सदस्य को ये सुझाव है कि अगर उनके स्पेसिफिक इलाके में कहीं पर उनको लगता है कि किसी भी दृष्टि से, और ये बात मैंने पहले भी कही है इस सदन में कि जो एक 2011 की एक गाइडलाइंस हैं जो कि हेल्थ के सिस्टम्स के लिए पैरामीटर्स के लिए, उन गाइडलाइंस के अनुरूप आप जो है पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस के अनुरूप आप अपने अपने इलाकों में जाके सारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, इनको आप जाकर एग्जामिन करिए और उन गाइडलाइंस के हिसाब से वहाँ जो जो चीज़ों की कमी है आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू प्रपोजल अगर भारत सरकार को भिजवाते हैं, वो सारी की सारी उस लेवल तक सब कुछ स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो जैसे उन्होंने अपने इलाके के खासकर ट्राइबल एरियाज़ के लिए कंसर्न व्यक्त किया है, तो अगर जहां उनको लगता है कि कोई स्पेसिफिक कमियां हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हमारे को भारत सरकार को भिजवाएं। मैं आश्वासन देता हूं इस सदन के फ्लोर पर कि आप में से और भी कोई अगर इस प्रकार की एक्सरसाइज करके वो करेगा तो वी विल एंश्योर कि आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो पूरी की जाएँ। 2014 तक 50,000 MBBS की सीटें और 2014 से लेकर और अभी तक 30,000 से ज़्यादा सीटें MBBS की हमने भारत के अंदर क्रिएट की हैं। इसी तरह से PG की भी सीट्स जो है 24,000 से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स क्रिएट की हैं और सारी योजनाओं के तहत DNB के माध्यम से, डिप्लोमा के माध्यम से ये मेडिकल एजुकेशन का जो प्रकल्प है इसको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और जो आपके जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके लिए नई रेजिडेंसी योजना बनाई है, जहाँ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर
जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए डॉक्टर हैं उनको 3 महीना कंपलसरी वहाँ रेजिडेंसी, डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी स्कीम के तहत जो है इन इलाकों में भी जाना पड़ेगा जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से जो है सरकार की तरफ से प्रोएक्टिवली इसके अंदर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। For thalassemia, what has been done to after it has been recognized as a disability, and have free blood banks been provided for thalassemic patients? Have there been camps in which thalassemic patients are registered? What exactly has been done to recognize and to fulfill the responsibilities that come under the word disability for thalassemic patients? There is no provision at all for blood for poor people. The Prime Minister's Relief Fund, which is given for medical emergencies, and the Chief Minister's Relief Fund of all states does not cater to thalassemics at all. It caters for one-time operations. A thalassemic person needs money for a whole blood transplant every few weeks, and there is absolutely no money. Now, either I could suggest that we allow every thalassemic patient to get the Ayushman card, so that their blood transplants can come free within that stipulated sum of 5 lakhs a year. थैलेसीमिक बच्चे जो है वो हमारी सरकार की एक प्रकार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी इश्यूज़ में से एक हैं, और सारे देश में जो ब्लड बैंकिंग का नेटवर्क है और उसमें भी जो उसको सारे चीज़ों को इंटीग्रेट किया गया है, उसमें उसके माध्यम से इन बच्चों की जो मेन जो सबसे बड़ी ज़रूरत 3 तरह की ज़रूरत होती हैं। एक तो प्रिवेंशन की दृष्टि से तो स्क्रीनिंग का इशू आता है, जिसके लिए कॉलेजेस में दूसरे जगह पे जो है कई सारे कैंप्स लगाकर स्क्रीनिंग की जाती है, लोगों को गाइडेंस दी जाती है। जो प्री कंसेप्शन जो है मैरिज के अंदर काउंसलिंग्स इत्यादि की जाती हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन जो बच्चे थैलेसीमिक्स हैं, कैरियर हैं या थैलेसीमिया उनको जो है डेवलप हो गया है पूरी तरीके से, उनके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, या उनके लिए फिर जो है जो ड्रग्स हैं जो कि आयरन किलेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं। और तीसरी चीज़ होती है जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं, उनको मान लीजिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें हमारी सुविधाओं पे नंबर 1 ये निःशुल्क उपलब्ध होती हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में क्योंकि ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो इसके लिए जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि है, या तो उसके माध्यम से ऐसे मरीज़ों को हेल्प की जा सकती है, या फिर जो है हमने स्टेट्स को भी ये सुविधा दी है कि वो अपने अपने स्टेट्स में स्टेट इलनेस असिस्टेंट फंड क्रिएट करें, जिसमें अगर वो 50% लगाते हैं तो 50% भारत सरकार उनको हेल्प करती है। ब्लड इन सब बच्चों को सारे देश में सभी हमारे सरकारी ब्लड बैंक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, दवाइयाँ इनको मिलती हैं। और इवन कोविड टाइम में, क्योंकि मैंने पर्सनली उसको मॉनिटर किया है, जब ब्लड की जनरली शॉर्टेज थी, तो वी मेड स्पेसिफिक arrangements to ensure that not a single thalassemic patient is deprived of the blood during that COVID time. Even voluntary blood donation को भी strengthen करने के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी या दूसरे सिस्टम के थ्रू हम लोग वॉलंटरी ब्लड डोनर्स के घर में सारी व्यवस्था को भेजकर वहाँ से भी हम लोगों ने ब्लड कलेक्ट किया। मंत्री जी, ये 2-3 चीज़ें हैं जो चाहे वो डॉक्टर्स हैं उनके अंदर भी जब उनसे बात करो, जब सारे एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो, तो एप्रीहेंशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। भी क्या ये वैक्सीन है जो ये कहीं हमारे डीएनए में या सेल्स में ये क्या, क्योंकि आपके पास बड़ी स्टडीज़ होंगी, डाटा होगा इसको प्रूव करने के लिए, क्या अगली जनरेशन्स के ऊपर ये डीएनए में जाके क्या असर डालने वाली हैं? ये चीज़ें एक भय का माहौल बनाती हैं। अगर पार्लियामेंट में आप इस चीज़ को थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे भी ये डीएनए में कोई खतरे की बात नहीं है कल को जनरेशन्स में, तो बहुत अच्छा होगा। वैक्सीन्स की मदद से ही दुनिया ने चेचक और पोलियो जैसी बीमारी पर फतह प्राप्त की है, यानी कि विक्ट्री प्राप्त की है, उनको इरेडिकेट कर दिया। अब उनका वायरस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। पोलियो थोड़ा सा बचा है 2 देशों के अंदर, लेकिन मोटे तौर पर जो है वो इरेडिकेशन की ओर है पूरी दुनिया के अंदर। और जहाँ तक इस पर्टिकुलर कोविड की वैक्सीन की आपने बात की है, तो वैक्सीन्स को जब समाज में इस्तेमाल करने के लिए अप्रूवल दिया जाता है, उसके पहले बहुत डिटेल के अंदर उसके साइंटिफिक ट्रायल्स होते हैं।
प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के बहुत सारे फेजेस होते हैं, इंसानों से पहले जो है उनके जो है एनिमल स्टडीज़ होती हैं, और हज़ारों लोगों के अंदर जो फेज़ 3 ट्रायल्स होते हैं उसमें 40,000 50,000 तक लोगों के ऊपर ट्रायल्स होते हैं, और उनके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो भी कोडेड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी को पता होता है कि उसको वैक्सीन लगी है या उसको प्लेसिबो लगा है। और फिर उन रिज़ल्ट्स के आधार पर जब उनके लिए अप्रूवल्स मांगी जाती हैं तो उसके लिए बहुत बड़े एक्सपर्ट्स की सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी होती हैं। वो उनके सारे एक केसेस के डाटास का बहुत डिटेल्ड विश्लेषण करती है, और फिर देश में ही विश्लेषण नहीं होता इन डाटास का, अल्टीमेटली इनकी स्क्रूटनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के आधार पर भी होती है। फिर दुनिया में जितनी भी वैक्सीन कहीं पर भी बन रही हैं आज, वो पूरे वर्ल्ड में 7 स्थान ऐसे हैं जहां उन वैक्सीन्स को फर्दर इंडिपेंडेंटली उसका असेसमेंट होता है। उन 7 स्थानों में से एक स्थान हमारा बायोटेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट भी है जो फरीदाबाद के अंदर है। ये मैंने इन चीज़ों की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारी जो जनता के बीच में जब आती है, और जो आज लगभग 3.5-4 करोड़ जो लोगों को डोजेज़ लग गई हैं, जिसमें अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे तो 0.000432 ये आज हमारा ये वैक्सीन्स के बारे में भारत का ये साइड इफ़ेक्ट है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो चीज़ साइंटिफिक स्क्रूटनी और विश्लेषण से बाहर आती है और जब उसका इस्तेमाल होता है और सारी दुनिया कर रही है, इतने सारे दुनिया में एक्सपर्ट्स उसको सारे बातों का ध्यान करके करते हैं, तो फिर हमें निश्चित रूप से जो साइंटिफिक डाटा है उसका विश्लेषण है उसके ऊपर विश्वास करना ज़रूरी है। आपके माध्यम से हम देश के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन्स के बारे में कोई अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम ना रखें, और आपको जो सुविधा उपलब्ध कराई है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व देकर उस सुविधा को अपने निकट के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर और एक फ़ोन से अपनी बुकिंग कराकर आप उस वैक्सीन को लीजिए, अपने को सुरक्षित करिए, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, समाज में सबको सुरक्षित करने का काम करिए। The vaccination drive is doing very well in India, and you are encouraging more and more people to take it. So is this government which has made 35,000 crores available in the budget, are you committed to quickly do universal vaccination? And if you are encouraging, by when will you allow universal vaccination, including the pediatricians to be allowed like the other programs? Every vaccine doesn't require universal immunization, that's number one. And all these priority groups that have been, you see, set up, like first you decided that you will give it to health workers, then the frontline workers, now we are giving it to people above 60 or those with comorbidities between 45 and 59. Tomorrow this will further expand. These are all based on opinion of the experts, that's number one, and of the experts not only in India, but there are guidelines which have been given by the World Health Organization also, who needs to be prioritized first. So, and there is a very well-defined group that is called the NEGVAC, that is a National Expert Group for Vaccine Administration. Whatever you are seeing today, it is the result of a hard work of so many people in our ministry and the NEGVAC, which was formed by the Prime Minister in the first week of August. Since then, this group is working. They are in touch with all the scientific, you see, developments in this particular field, not only in India, but all across the world. So, it is not necessary scientifically to give each and every person in the country the vaccine. It is not going to be given to each and every person on this globe. This prioritization process being a dynamic process, the behavior of COVID is also a dynamic process. All the things are based on scientific facts, scientific scrutiny, and scientific vision of the overall scientific and health community.